Welcome back to the class, children. Today we are going to have activity 4 of the chapter money. Okay, so earlier we have done activity 3 in which we have done addition already. Now it's the turn of subtraction. Alright, so let's start with the question number 1. So children, we have only one type of question in this activity, that is, we'll show you the demo. Let's start with the easiest one. It's question number 1, rupees 31.25 paise from. Now this from word has a very, great significance in subtraction. Next is from rupees 50.00 paise. Okay. So children, this from word, as I told you, is of great importance. जहाँ पे भी ये from word होगा, that means इस नंबर को आपको इस नंबर से माइनस करना है. दैट मीन्स you'll subtract this number from this. आप कौन से नंबर को ऊपर लिखोगे? you'll write 50.00 यहाँ पे, I mean rupees, I forgot to write rupees, and 31 को आपको नीचे लिखना पड़ेगा. Why? Because your 50 is greater than 31, और आपको पता है कि आप छोटे नंबर से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं. So children, lack of space again. So we'll start 50.00. Make sure that you write the numbers, in a great distance, means not so much, but yes, थोड़ा सा ज़्यादा distance maintain होना चाहिए, so that problem ना आए आगे. Alright, so 0 में से 5 we cannot subtract, so it will take a carry from this. It will become 10. अब now this 0 don't have anything, इसके पास खुद कुछ नहीं था, तो इसने पहले मांगा, it became 10, फिर इसने 1 दिया, so it became 9. so ये क्या बन गया? it became 9. now यहाँ पे भी 0 था, इसने भी 1 कैरी किया होगा और उसको भी 1 दिया होगा, so again it became 9 and this 5 became 4. now it's easy for doing the subtraction. now 10 minus 5 is 5, 9 minus 2 is 7, point के नीचे we'll put point, 9 minus 1 is 8, 4 minus 3 is 1, and rupees की जगह rupees. So our answer will be rupees 18.75 paise. Okay, children, addition and subtraction both are very similar. Means as we used to do in the simple form, it's almost the same. Just the thing is that you have to put points and rupees. आपको point और rupees लगाने पड़ेंगे यहाँ पे. Without that, your answer won't be correct, right? So let's do one more question, a bit difficult one. So I'm going for the H part. H wala part I'm going to do here. It's rupees. So I'm directly going to solve it because you can see the questions from here also. Rupees. I have taken a lot of space. Sorry. Okay. So I'll start by here. It's rupees 5,598.25. Right, as you can see, I'm taking a lot of space. From rupees 7,390.00. now you'll get confused that I have written the question in this way, but children, not to worry. मैंने आपको बताया था जहाँ पे भी from होता है वहाँ पे हम बाद वाले नंबर को कहाँ लिखते हैं? ऊपर, या फिर और you can use it in the way that जो बड़ा वाला नंबर होता है वो हम ऊपर लिखते हैं. So here the greater number is 7,390.00, right? ये है ना नंबर. and next number है हमारा 5,598 point something. it's 25. so subtract हमने जब किया, then we'll get to know that 0 तो minus कर नहीं सकते, so it will become 10. this 0 will become 9. ये वाला 0 भी क्या बन जाएगा? 9 बन जाएगा. this 9 will become 8. चलो I'll let you know here, 8 बन जाएगा. but this 9, ये तो बड़ा है फिर then 8 से, so it will take 1 and it will become 18. so here it will take 1 carry and became 18. suppose यहाँ पे अगर कोई smaller number होता 9 से, then it will work, right? so 3 के पास 5 से already 3 छोटा है, so वो भी 7 से उसको मांगना पड़ेगा. it will become 12.
and 7 will become 6. Okay, so all set, ignore this. All right, so 10 minus 5 is 5, 9 minus 2 is 7, point के नीचे point, 9 minus 8 is 1, 18 minus 9 is 9, 12 minus 5 is 7, and 6 minus 5 is 1. So our answer is rupees 1791.75. Children, it's very, very, very easy. Okay, now coming on to the word problems, story sums we have. हमारे पास जो story sum है, मैं आपको एक बारी let me read it once. So the story sum says Ragini bought a water bottle for rupees. Water bottle लेके आई रागिनी, उसका cost rupees 145.50. वो लेके आई इतना. She gave rupees 200. उन्होंने शॉपकीपर को कितने रुपीस दिए? 200 रुपीस टू द शॉपकीपर. हाउ मच मनी विल शी गेट बैक? अब शॉपकीपर उनको वापस कितने रुपीस करेगा? बिकॉज बॉटल तो इतने की थी, दिए उन्होंने ज़्यादा रुपीस, तो ऑब्वियसली शॉपकीपर तो इसे वापस करेगा. तो कितने वापस करेगा? सो इसको समझाने के लिए आई टेक वन एग्जाम्पल. सपोज मैंने एक पेंसिल ली ऑफ 5 रुपीज़. ठीक है, मैंने शॉपकीपर को दिया रुपीज़ 10 का नोट. ठीक है, बिकॉज मेरे पास चेंज नहीं थे, मैंने रुपीज़ 10 का नोट दे दिया शॉपकीपर को. अब शॉपकीपर मेरे को कुछ अमाउंट रिटर्न करेगा. वो क्या अमाउंट होगा, कैसे पता लगाएंगे हम? जो हमने रुपीज़ दिए हैं वो ज़्यादा हैं, जो हमारा सामान आया उसका रुपीज़ क्या है, कम है. सो हम क्या करेंगे, दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे और जो आंसर आएगा वो अमाउंट जो है शॉपकीपर हमें वापस करेगा. सो इन द सेम वे यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, रागिनी एक सामान लिया विच वॉज अ बॉटल, उसका एक आपको रुपीज़ दिया था 145.50. उसने शॉपकीपर को 200 रुपीज़ का नोट दिया जो कि सामान से ज़्यादा है. सो ऑब्वियसली शॉपकीपर वापस करेगा. कितना वापस करेगा? 200 माइनस 145.50 रुपीज़. इसमें से जो माइनस करके आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर. चिल्ड्रन, इट्स वेरी क्लियर दैट क्या होगा, यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है. सो पहले हम इसका स्टेटमेंट बनाते हैं. दैट इज कॉस्ट ऑफ बॉटल. कॉस्ट ऑफ बॉटल इज रुपीज़, यहाँ पे हम इक्वल टू करके लिख लेंगे रुपीज़ 145.50. देन रागिनी ने कितने रुपीज़ दिए? रागिनी गेव रुपीज़ 200, है ना. नाउ मनी शी विल गेट, उसको वापस कितने मिलेंगे ये हमें निकालना है. जो हम कैसे निकालने वाले हैं, वी आर गोइंग टू फाइंड इट थ्रू subtraction, right? So I'm going to subtract it. अच्छा, 145 को ऊपर लिखूँ, 145.50 को ऊपर लिखूँ या 200 को? 200.00. ऑब्वियसली 200 को, बिकॉज 145 से 200 क्या है, ग्रेटर है. सो आई राइट रुपीज़ 200. और यहाँ पे देखो नाउ यूल से 145.50. 145 के पास तो पॉइंट के बाद भी नंबर है, बट 200 तो सिर्फ 200 गिवन है. तो चिल्ड्रन, जहाँ पे कुछ नहीं होता है वहाँ पे पॉइंट के बाद 00 होते हैं. ऑलराइट, सो आई विल पुट 00 हियर एंड 145.50. सिंपली सब्ट्रैक्ट. 0 minus 0 is 0, 10 minus 5 is 5. यहाँ पे हो जाएगा ये 9, 9 minus 5 is 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट. ये क्या हो जाएगा 9, it will also become 9, it will become 1. So 9 minus 4 is 5 and 1 minus 1 is 0. So our answer, so शॉपकीपर कितने रुपीज़ वापस करेंगे? रुपीज़ 54.50. ये 0 हम हटा देंगे. ओके, so this is your answer. Now children, moving on to the next one, which is the third question. This you'll do by yourself. Okay, now I'll explain you. Cost of a water bottle and a tiffin box together. देखो, एक है टिफिन बॉक्स प्लस एक है वाटर बॉटल. इन दोनों का मिला के जो कॉस्ट आया है, मतलब इसका रेट भी इसका रेट भी, इन दोनों को मिला के जो रेट आया वो है रुपीज़ 255.50. ठीक है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाटर बॉटल. अब हमें किसकी कॉस्ट निकालनी है? वाटर बॉटल की. इफ़ द कॉस्ट ऑफ द टिफिन बॉक्स का हमें कॉस्ट दिया है 95 रुपीज़ एंड
एंड 75 पैसे। ये हमें क्या करना है, वाटर बॉटल का निकालना है ना। हम कैसे करेंगे इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, माइट भी आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए। सपोज मैंने एक पेन ली, सॉरी माई पेन इज़ नॉट लुकिंग लाइक अ पेन। सो मैंने एक पेन ली, ठीक है। मैंने 2 पेन्स ली एक्चुअली, एक ये ली, एक ये ली, ठीक है। मैंने शॉपकीपर को दिए 10 रुपीज़, जो कि उसने मेरे को बोला कि ये जो दोनों का मिला के जो आपका प्राइस आया है वो 10 रुपीज़ है, आप मुझे 10 रुपीज़ दे दीजिए। सो आई गेव द शॉपकीपर 10 रुपीज़। अब ये वाली जो पेन है वो है 4 रुपीज़ की। अब ये वाली पेन कितने की है हमें नहीं पता। सो हम क्या करेंगे, जितना मैंने शॉपकीपर को दिया उतने में से ये जो एक पेन का हमें पता है उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो दैट इस वाले का रेट मिल जाए हमें। सो सिंपली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, जो हमारे पास टोटल कॉस्ट है दैट इज ₹255.50, उसमें से हम 95.75 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे एंड विल गेट द कॉस्ट ऑफ द water bottle. So this you are going to do by yourself. So children, I hope you got the activity 4. So we'll meet for the next activity now, which will be activity 5, and it's going to be multiplication, and might be I'll be telling you division also in the same, because both of them are just similar to each other, means it's all very easy. Okay, so children, we'll meet you in the next class. Till then, bye bye.